ریکارڈنگ پہ لگا. ٹھیک ہے، تو یہ باب الحقوق ہے. باب الحقوق کو ہم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی شروع میں لفظ آ رہا ہے من یا من. تو حرف جار دیکھیں، حرف جار جو ہے نا وہ کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بالکل یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے. وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، فعل پہ داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جی بظاہر اگر کوئی فعل آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ پھر ہم اسے جو کہتے ہیں نا مراد اللفظ. ٹھیک ہے نا. جی جی وہ صرف لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہاں مراد اس کی فعل نہیں ہوتی. صحیح تو یہاں پر یہ جو ہے وہ من ہے، اور اس کے بعد اشترا یا. ٹھیک ہے نا. اشترا تعلیل کے بعد ہو گیا باب افتعال سے جو ہے. ٹھیک ہے نا. افتعالہ کے وزن پر اشترا ہے یہ. تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ پھر من ہوگا، من نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. صحیح یہ کہتے ہیں جی ومن اشترا، اور جس نے خریدا. اشترا مانے ٹھیک ہے نا. شرع صحیح اس کا جو ہے شرع یشری اس کا وہ ہے مادہ ہے، یعنی اس سے ثلاثی مجرد سے شرع جو ہے وہ مادہ ہے. تو ومن اشترا، اور جس نے خریدا منزلن. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جو اسماء منصوب ہوتے ہیں ان کے آخر میں الف آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مفعول بن رہا ہے. اب کون سا مفعول بن رہا ہے؟ مفعول بہی بن رہا ہے، مفعول فی بن رہا ہے، مفعول لہو بن رہا ہے، مفعول معہو بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یا حال تمیز وغیرہ کچھ اور بن رہا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی جس نے خریدا منزلن ایک منزل کو. دیکھیں جب نکرہ آتا ہے اسم تو ہم عام طور پہ اس کا ایک وغیرہ سے ترجمہ کرتے ہیں، ایک یا کوئی. ٹھیک ہے نا. صحیح تو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کون سا ہے، کوئی معین شخص تو ہے نہیں، کوئی معین چیز تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی وما نشترا، اور جس نے خریدا منزلن ایک منزل کو. صحیح ہے نا. من جو ہے وہ یہاں اصل میں یہاں پر کیا ہے، حرف شرط وغیرہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے نا من. جس نے صحیح خریدا یعنی جس نے خریدا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے ٹھیک علاوہ ہے بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے ایسا کوئی فعل سر انجام نہ دیا ہو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی وما نشترا، اور جس نے خریدا ایک منزل کو. ایک اچھا، اب منزل کے آگے اگر کوئی ایسے الفاظ ہوں جو کہ اس کی صفت بن سکتے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ایک منزل وغیرہ کے بجائے ایسی منزل کو، یہ زیادہ ٹھیک ہے اچھا جو ہے ترجمہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس نے خریدا ایک ایسی منزل کو. کیسی منزل کو؟ فوقہ منزل. اب یہ دیکھیں یہ ہم قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کے شروع میں، اگر جار مجرور یا مفعول فی آ جائے، یعنی ظرف زمان وغیرہ آ جائے، ظرف مکان، تو کیا ہوتا ہے؟ تو خبر مقدم ہوتی ہے یہ ظرف یا جار مجرور، اور جو بعد والی چیز ہے وہ مبتدا مؤخر بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو فوق، فوق جو ہے یہ آپ کو پتا ہے فوق بھی ہمیشہ جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل نا. تو فوقہ منزل. اب یہ خبر مقدم بن رہی ہے تو یہ تو مبنی ہے، تو یہ تو ایسے ہی رہے گا. لیکن آگے جو منزل ہے اسے ہمیں منزل پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اور مبتدا صحیح ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ومن اشترا، اور جس نے خریدا منزلن ایک ایسی منزل کو. کیسی منزل کو؟ فوقہ منزل، اس کے اوپر بھی ایک منزل ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم ٹھیک کہتے ہیں نا ڈبل اسٹوری گھر، ٹرپل اسٹوری گھر، صحیح 12 اسٹوری فلیٹس. ٹھیک ہے نا. تو ایک ایسی منزل کو کہہ رہے ہیں جس نے خریدا جس کے اوپر بھی ایک منزل بنی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا. تو اچھا منزل، بیت اور دار، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ مختصراً میں بیان کر دوں کیونکہ ابھی نفس مسئلہ کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، ابھی صرف ہم صحیح ترکیب کرنا مقصود ہے نا. لیکن یہ کہ تھوڑا وضاحت بھی ہو جائے، کنفیوژن بھی نہ ہو نا. بیت جو ہے نا وہ صرف ایک کمرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے پرانے ٹھیک زمانے میں سرائے وغیرہ ہوتی تھی نا، کوئی بندہ آیا اور اس نے وہاں پر چند گھنٹے گزارنے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا صحیح رات کو وہ پہنچا اور رات سے صبح تک اس نے ٹائم گزارنا اور وہ وہاں سے چلا جائے گا. اس میں کوئی زیادہ ٹھیک ہے فیسلٹیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. باہر اگر ٹھیک کوئی ہے واش روم وغیرہ الگ سے بنا ہوگا تو بنا ہوگا واش روم سے. ٹھیک ہے نا. استعمال کرنا ہے تو وہ اسے اویل کرے، ادروائز وہ کمرے میں اسٹے کرے گا اور وہ چلا جائے گا. منزل ٹھیک جو ہے ہے اس سے ایک تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے بیت سے، یعنی جس گھر صحیح میں تھوڑی سی کچھ اور فیسلٹیز بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے کچن وغیرہ بھی اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے نا. اور بھی چھوٹی موٹی کچھ اور فیسلٹیز ہوں تو وہ کس میں آ جاتی ہے؟ منزل کے اندر. ٹھیک ہے. صحیح یعنی آپ منزل کو لے سکتے ہیں ایک فلیٹ کے درجے میں نا. ٹھیک ہے نا. لیکن ٹھیک ہے آج کل کے فلیٹ نہیں، یہ آج کل تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری سہولیات ہوتی ہیں نا، کیونکہ بندہ پراپر اس میں
रह रहा होता है। पहले ज़माने में बिल्कुल। ऐसे नहीं होता था। गांव देहात में आपको आइडिया होगा कि अंदर बैठक बैठक या कमरे अंदर बेडरूम होते थे, एक आध बैठक शुरू में होती थी, और कहीं बैठक के आसपास ही दाएं बाएं इधर उधर वॉशरूम होता था। वो भी अब बनना शुरू हुए हैं। बहुत पुराने में तो वो जी। भी नहीं होते थे, या बड़े घरों में बिल्कुल। वो भी कहीं कोने खांचे में कहीं होते थे, दूर कमरों से अलग। बिल्कुल। ठीक है ना, तो बिल्कुल। वो इन वॉशरूम्स वगैरह को सेपरेट एक एंटिटी लेते थे। सही है ना। बिल्कुल। तो इस तरह मंजिल क्या है, मंजिल में कमरे से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, वो मंजिल कहलाएगी। और फिर जिसकी बाउंड्री हो, अच्छा मंजिल की बाउंड्री नहीं होगी। सही है ना, यानी अच्छा। एक जो घर है समझ लें, जैसे फ्लैट होते हैं बहुत सारे, तो उसके अंदर छोटे छोटे कई फ्लैट होते हैं। ठीक है। सही। तो अब वो फ्लैट को आप एक मंजिल के तौर पे ले लें, लेकिन आजकल का नहीं, पुराने ज़माने का। ठीक है। और जी। दार जो है, दार इन सब का सुपर सेट आप कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं या सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और उसकी एक बाउंड्री होती है। तो आजकल के हिसाब से हम ठीक है। कहें भाई हमारा घर है, घर के अंदर 4 कमरे हैं। ठीक है ना, मिसाल है 3 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, लाउंज है, डाइनिंग है। ठीक है ना, वॉशरूम भी 4 हैं, किचन भी है, फलाना ढकाना, गैराज भी है, स्टोर रूम भी है, सर्वेंट क्वार्टर भी है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें मिला के चीज़ बनती है, इसको क्या कहते हैं, दार। ठीक है ना। ठीक है। तो सिर्फ एक सिंपल कमरा जो है वो बैत कहलाता है। उससे ऊपर कुछ और एडिट फैसिलिटीज़ होंगी तो, लेकिन सारी नहीं, कुछ फैसिलिटीज़ तो सही। मंजिल हो जाएगी। फिर उस और ज़्यादा ऑलमोस्ट समझ लें सारी मुकम्मल फैसिलिटीज़ होंगी तो वो दार कहलाएगा। ठीक है। तो ये मसला ठीक ये है। बयान कर रहे हैं कि भाई जिसने खरीदा एक ऐसी मंजिल को कि जिसके ऊपर भी एक मंजिल है। सही है। तो इस्माइल भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, तो अभी कह रहे अच्छा। हैं कि जिसने खरीदा एक ऐसी मंजिल को जिसके ऊपर भी एक मंजिल है, तो क्या होगा, फलईसा। लईसा क्या है, हमेशा नेगेटिव माना में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो लईसा हमेशा नेगेटिव माना में इस्तेमाल होता है, मनफी जो है वो माना में इस्तेमाल होता है। फलईसा लहुल आला। ठीक है ना, तो पस या उसके लिए नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है लहू उस शख्स के लिए, अल आला। आला, आला से मुराद असल में क्या है, आला और अदना वाला वो मामला नहीं है। ये असल में अच्छा। जैसे कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो ये फर्स्ट फ्लोर सही। को आला के तौर पे ले रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर को, ठीक है ना, वो नीचे वाले फ्लोर के तौर पे ले रहे हैं, या फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले में सेकंड फ्लोर आला कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक है। इस्माइल भाई, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह, ये काशिफ साहब भी आपके कोई हैं, इन्होंने भी आज ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल है पहले एक आध दफ़ा ही शायद किया है। सही। जी जी। अच्छा। अच्छा, ये आज आप मतलब कंफर्म नहीं था आप लोग आएंगे, तो मैंने यही कहा कि यार हम डायरेक्ट तरकीब शुरू करते हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी पिछले कवायद की, और थोड़ा सा, ठीक है ना, वो तरकीब भी सही आपकी है। बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं ये बता रहा था कि हम्म। बाबुल हुकूक जो है, हिदाया किताब है ये। ठीक है ना, इसका बाबुल हुकूक जी वगैरह ये हम लोगों का भी यही चल रहा है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये आप लोग भी थोड़ा सा इससे फेमिलराइज हो जाएंगे, और ठीक है ना, और कुछ नॉलेज भी अपडेट हो जाएगी, और तरकीब भी अच्छी हो जाएगी, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि भाई हम बड़ी किताबें जिनको कहते हैं बहुत मुश्किल ऐसी होंगी, वो ऐसा नहीं होता। बस ये कि थोड़ा सा कुछ उसमें बाज़ औक़ात कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो बैकग्राउंड चाहिए होता है। ठीक है, या फिर ये होता है कि आपको थोड़ा सा उसमें गौर करना पड़ता है, वरना ये कि थोड़ी सी कोशिश मेहनत से आप समझ सकते हैं। अच्छा, हमने शुरू किया बाबुल हुकूक। ठीक है ना, बाब जो है ये मुदाफ़ है, और अल हुकूक जो है क्या है, मुदाफ़िल है, यानी हुकूक का बाब। ठीक है ना, बाब नकरा है, और अल हुकूक क्या है, मारिफा है। ठीक है ना, तो इसकी सही। ये 3-4 आमतौर पर निशानियां होती हैं कि नकरा के बाद मारिफा आ जाए तो मुदाफ मुदाफिल है। ठीक है ना, का की के का जी। तर्जमा आ जाए, हुकूक का बाब, तो बाब और हुकूक के दरमियान का की के आ जाए, आ रहा है तो ये वाली चीज़ है। ठीक है ना, या इसम के बाद हम कहते हैं ज़मीर आ जाए, तो वो कायदा तो यहाँ नहीं लग रहा। ठीक है, या एक चौथी चीज़ और फ्रीक्वेंट होती है, जिसे हम कहते हैं कि मस्दर। मस्दर जो है वो अक्सर अक्सर जो है 80-90%, 95% मस्दर जो है मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मस्दर के बाद भी कोई और इसम आ रहा हो, तो वो भी क्या है, मुदाफ मुदाफिले बनता है। ठीक है, तो अभी देखें हमने ये शुरू किया था वमनिश तरा। तो मैं यही अमजद भाई को बता रहा था कि भाई ये मिन होगा या मन होगा, तो इसमें कायदा ये है कि मिन जो है वो फेल पर कभी भी दाखिल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये मिन नहीं हो सकता। इश्तरा जो है ये फेल है। ठीक है ना, इफ्ताला के वजन पे, बाब इफ्तियाल से इश्तरा या था, तालील होके इश्तरा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मिन हरफ जार नहीं हो सकता, बल्कि ये मन होना चाहिए, क्योंकि मन तो फेल पे दाखिल होता है, मन तदरिब, अदरिब।
ठीक है ना, आपने सुना होगा, ठीक है ना, मन ताकुल आकुल, जो तुम खाओगे मैं खाऊंगा, जिसको तुम मारोगे मैं भी मारूंगा, मन तदरिब अदरिब। तो इसी तरह मन फेल पे दाखिल होता है, मिन फेल पे दाखिल नहीं होता, तो ये हम मन पढ़ेंगे। फिर मंजिल की बात आई, मंजिल पे हमने थोड़ा सा कलाम किया, ठीक है ना, तो आप उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें सुन लीजिएगा। मंजिल बस ये होता है कि अरबी के अंदर बैत जो है वो एक एक कमरा जो होता है वो उसे बैत कहा जाता है, ठीक है ना। फिर उसमें थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ हो तो मंजिल कहा जाता है, फिर और ज़्यादा मुकम्मल फैसिलिटीज़ हो तो उसे दार कहा जाता है। दार में ये कि समझ लें सारी फैसिलिटीज़ एक घर की होती हैं और उसकी एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, ठीक है ना। बैत जो है वो सिर्फ एक कमरा होता है, मंजिल जो है वो मंजिल जो है वो उसमें समझ लें कमरे से कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसमें किचन वगैरह हो सकता है, कोई और छोटी मोटी, ठीक है ना, और इस तरह की फैसिलिटी हो सकती है। अब ये कह रहे हैं मनीष तरह जिसने खरीदा मंजिलन, एक मंजिल को, एक ऐसी मंजिल को, कैसी मंजिल को, फौकहू मंजिलुन, जिसके ऊपर भी एक मंजिल है, ठीक है ना, एक ऐसी मंजिल को जिसके ऊपर भी एक मंजिल है। तो ये मंजिलन असल में जो है ना मफूल बिही तो बन रहा है, किसको खरीदा, हम कहते हैं पता है ना क्या या किसको के जवाब में जो चीज़ आती है वो मफूल बिही बनती है, ठीक है, कायदा हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब ऐसी मंजिल जिसकी आगे कोई क्वालिटी बयान की जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक बयान की जा रही है, और आपको पता है जब किसी इस्म की मजीद फर्दर कोई कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी बयान की जाती है तो वो क्या चीज़ बनती है, उस इस्म की सिफत बनती है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं मनीष तरह मंजिलन, जिसने खरीदा एक ऐसी मंजिल को, फौकहू मंजिलन, उसके ऊपर भी एक मंजिल है। तो कह रहे हैं क्या होगा, फलैसा लहुल आला, तो नहीं होगी लहू उस शख्स के लिए अल आला ऊपर वाली, ठीक है ना। यानी होता ये है कि जो दार है, दार के अंदर तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। बैत जो है वो कमरे की हद तक महदूद रहता है और मंजिल जो है वो मंजिल की हद तक महदूद रहती है। अगर किसी शख्स ने, ठीक है ना, पुराने ज़माने की बात है, वो कोई एक मंजिल ख़रीदता था, अगर किसी दार में 3-4 मंजिलें हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो मंजिल जिसकी बात की वही मंजिल आप ख़रीदेंगे, ऊपर वाली मंजिल आपकी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो ये तो अब कह रहे हैं कि फलैसा नहीं होगी लहुल आला, ऊपर वाली मंजिल, लहू उस शख्स के लिए, इल्ला मगर ये, अब इस्तिस्ना बयान कर रहे हैं। इल्ला आपको पता है उर्दू में भी है, अब तो मुस्तामल है, ठीक है ना। तो इल्ला जो है हरफे इस्तिस्ना है, ठीक है ना। तो अब इस्तिस्ना कर रहे हैं कि उसकी वो नहीं होगी, लेकिन कब होगी, यानी कब हो सकती है। इल्ला से पहले वाली चीज़ जो है वो इल्ला के बाद वाली चीज़ को में से जो है वो निकल जाती है, खारिज कर देती है, ठीक है ना। आपको पता है कलेमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, ठीक है ना, इल्ला मगर, पहले हमने नफी की कि कोई माबूद नहीं है, फिर हमने क्या कहा, इल्ला मगर कौन, अल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह, या दूसरे लफ्ज़ों में तर्जमा ऐसे भी होता है कि ठीक है जो हकीकी माबूद है वो सिर्फ अल्लाह है। तो दोनों तरह इस तरह की इबारत का तर्जमा करते हैं, या तो जो मुस्तस्ना है जो है ना उसी के ऊपर आप जो है वो उस चीज़ को जो है वो ख़ास कर देते हैं उसके लिए, ठीक है, जो इल्ला से माकबल जो भी बयान होता है उसको, या आप जो है वो कहते हैं कि जो इल्ला से पहले वाली चीज़ है वो किसी के लिए दुरुस्त नहीं है लेकिन इल्ला के बाद वाले के लिए, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई उसने एक ऐसी मंजिल खरीदी जिसके ऊपर भी एक मंजिल है, तो वो ऊपर वाली मंजिल उसकी नहीं होगी, मगर कब होगी, अन यश्तरिया, अन क्या है, अन मजदरिया, ठीक है ना। अन मजदरिया आपको पता है जब मुजारे पे दाखिल होता है तो क्या करता है इस्माइल भाई, कुछ कायदा जहन में आ रहा है? जी, अन जब दाखिल होता है, हाँ, अन जो है वो फेल पे दाखिल होता है ना, अक्सर मुजारे पे दाखिल होता है, तो मुजारे पे दाखिल होने के बाद एक खास अमल करता है, वो क्या करता है, नसब देगा ना वो, हाँ नसब देगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो नसब इल्ला, देता है ना। हाँ इश्तरा यश्तरी, इश्तरा फेल शुरू में आया ना, उसके बाद ये इश्तरा यश्तरी फेल आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अन मजदरिया की वजह से अन यश्तरिया हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, अन यश्तरिया हु, ठीक है ना। कि वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाली मंजिल उसकी नहीं होगी मगर ये कि वो खरीदे, ठीक है ना, वो खरीदे किसको, अन यश्तरिया हु, उसको, उस मंजिल को, कैसे खरीदे, बेकुल्ली हक्किन। अब कुल देखें, बा जो है हरफे जार है, बा की वजह से कुल के ऊपर, कुल के आखिर में क्या आया, जरा भी। हरफे जार आ गया ना। कुल्ली, कुल्लू या कुल्ला आप नहीं पढ़ रहे इसको, कुल्ली पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर कुल्लिन नहीं पढ़ रहे, तनवीन नहीं पढ़ रहे,
बेकुल्लिन नहीं पढ़ रहे आप, बेकुल्ली पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं अमजद भाई? ये बा हरफे जार की वजह से सर। नहीं, हरफे जार की वजह से तो उसके आखिर में जो है वो कसरा आ गया ना, लेकिन तनवीन क्यों बिल्कुल नहीं आ रही? तनवीन ना आने का सबब कुछ और है और कसरा आने का सबब जो है वो हरफे जार है। तनवीन जो है वो देखें आगे, कुल आपको पता है लाजिमुल इजाफत है, लाजिमुल बिल्कुल इजाफत है, और कुल हमेशा मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा मुदाफ के ऊपर कभी भी तनवीन नहीं आती, ठीक है ना? बिल्कुल मुदाफ पे सही। कभी भी तनवीन नहीं आती, तो इसको हम पढ़ेंगे बेकुल्ली हक़्क़िन, ठीक है ना? अपने सही जो है उसके तमाम हुकूक समेत, ठीक है ना? सही। बेकुल्ली हक़्क़िन यानी तमाम, कुल हम कहते हैं ना, कुल जमात, कुल बिल्कुल जो है वो शहर, इस तरीके से। तो कुल क्या है? तमाम के माना में आता है, सब, पूरा, तमाम के माना में। बेकुल्ली हक़्क़िन, ठीक है ना, तमाम हुकूक के साथ। हुआ लहू, ठीक है ना, जो कि उस शख्स के लिए हैं। यानी क्या बयान किया इन्होंने कि अगर किसी शख्स ने एक ऐसी मंजिल को खरीदा कि उसके ऊपर भी एक मंजिल है, तो वो ऊपर वाली मंजिल उस शख्स के लिए नहीं होगी, यानी उसको वो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि नीचे की मंजिल खरीदी तो ऊपर की मंजिल भी उसे मिल जाएगी, ठीक है ना? लेकिन कब? इल्ला, अगर उसने ये डील में शामिल कर लिया, यशतरिया हु, कि उसने जो है वो खरीद लिया उस मंजिल को, ऊपर वाली मंजिल को, ठीक है ना, सॉरी ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली मंजिल को। कैसे खरीदा? बेकुल्ले हक्किन, अपने तमाम हुकूक के साथ, अपने तमाम हुकूक समेत। हुआ लहू, जो कि उस शख्स के लिए हैं, ठीक है। या औ, औ क्या है? हरफे अतफ, ठीक है ना। वाव और के माना में होता है, और औ क्या है? या के माना में होता है। औ बिमराफिक ही, मराफिक, ठीक है ना, मिरफकुन की जमा है, इसका मतलब क्या है? मनाफे, ठीक है ना, उसके तमाम फायदे। तो ये कह रहे हैं भाई, अगर किसी ने एक मंजिल को खरीदा उसके तमाम हुकूक के साथ या उसके तमाम मुनाफे के साथ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसने बोला भाई ये मंजिल ले रहा हूँ, उसने बोला भाई इस मंजिल से रिलेटेड, इसके अंदर बाहर दाखिल खारिज जितनी भी चीजें हैं ये सारी जो है ये मेरी हो जाएंगी, सही है ना? तो फिर उससे मुतल्लिक जितनी भी चीजें होंगी वो उस शख्स के लिए जो है वो उस डील में शामिल हो जाएंगी। भी मराफिकी ही, उसके तमाम मरा जो है वो मुनाफे के साथ, ठीक है ना। अच्छा आप देखें, मराफिक एक खास इसका वजन है मराफिक का, कोई बात समझ में आती है इससे? मराफिक, इस्माइल भाई? जी, मफाइल के नाम से, मफाइल के वजन पे। हाँ, तो मफाइल के वजन में क्या खास बात है उसकी, वो रीजन तो दें। ये तस्निया का सीगा है ना उसका। नहीं नहीं भाई, तस्निया का सीगा कहाँ से आ गया? ये जो है ये जमा मुंतहल जुमू है। इस बात से कुछ इशारा मिला आपको? नहव में पढ़ा होगा ना आपने, जमा मुंतहल जुमू, जी जी, पढ़ा तो है। ठीक है ना, नहव में या उसमें सर्फ में, ये असल नहर में, में पड़ा है। हाँ नहव में पढ़ा होगा आपने, गैर मुनसरिफ के उसमें पढ़ा होगा, ठीक है ना। असल में बिल्कुल ये औजान जो है मफाइल या मफाइल, ठीक है ना, मफातिह या मफातीह, कुरान में भी ये इस तरह के अल्फाज आए हैं। तो ये क्या है? जमा मुंतहल जुमू का वजन है। और जमा मुंतहल जुमू जो है आमतौर पे गैर मुनसरिफ के लिए दो असबाब चाहिए होते हैं, ठीक है ना, दो असबाब की वजह से कोई जो इसम है वो गैर मुनसरिफ बनता है। लेकिन जमा मुंतहल जुमू जो है वो अकेला ही सबब जो है वो दो असबाब के कायम मकाम है। तो ये मराफिक जो है ये क्या है? ये ये भी इसका जो है मफाइल या मसाजिद के वजन पर है, ये भी जमा मुंतहल जुमू है। और जमा मुंतहल जुमू के ऊपर आपको पता है कि जो कसरा है वो दाखिल नहीं होता, ठीक है ना। उसकी जो हालत नस्बी और जर्री है वो दोनों फतहा के साथ होती हैं, और हालत रफ़ी तो वैसे ही नॉर्मल होती है, ठीक है, जम्मा के साथ। लेकिन यहाँ मैंने क्या पढ़ा है? औ बिमराफिकी ही, मराफिका हु नहीं पढ़ा मैंने, मराफिकी ही पढ़ा है। तो मराफिक का जो आखिर है काफ, हु जो है वो तो जमीर है उसकी, मराफिक का जो आखिर काफ है उस पे मैंने कसरा पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? यानी ये कायदा यहाँ टूट गया, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कायदा टूटा है, तो इस कायदे की भी असल में क्या है? इस्तस्नाई सूरतें हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है ना। जब नहव में आप जाके देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब ये जो जमा मुंतहल जुमू के औजान हैं, जब ये
मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं ये अस्मा, ठीक है ना, या इन पर जो है वो अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो इसके ऊपर कसरा आ सकता है। वहां पर दो मिसालें लिखी हुई हैं, मररतु बि मसाजिदिकुम, ठीक है ना, मसाजिदा होना चाहिए था लेकिन मसाजिदिकुम यानी मररतु मैं गुजरा, ठीक है ना, आपकी मस्जिदों के पास से। मसाजिदिकुम तो मसाजिद मुदाफ बन रहा है और कुम की जो जमीर है वो क्या बन रही है, मुदाफ इले बन रही है। इस मुदाफ की वजह से क्या है, इसके ऊपर कसरा आ सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, ये बेमसाजिदिकुम अगर आपने कहा तो ये बा हरफ जार की वजह से कसरा है। हाँ, बा हरफ जार की वजह से इसके ऊपर कसरा जो है वो आ रहा है। और लेकिन क्या है, वो आगे मुदाफ बन रहा है, ठीक है बिल्कुल ना। अगर वो आगे मुदाफ ना होता, सही है ना, तो सही। इसके ऊपर जो है वो क्या नाम है, फतहा ही आता, ठीक है ना। ठीक। जैसे मिसाल वहां पर है ना, मररतु बी अहमदा, अहमद क्या है, बिल्कुल ठीक है ना, ये उसका जो है वो गैर मुनसरिफ। हाँ गैर मुनसरिफ है, वजन फेल भी है इसमें और अलम भी है, ये दो असबाब है ना बिल्कुल इसके अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल गैर मुनसरिफ होने के। लेकिन क्या है, मररतु बी अहमदा, बा हरफ जार वहां भी दाखिल हो रहा है, लेकिन अहमदा सही। आपने पढ़ा, लेकिन अहमद से पहले बिल्कुल अगर आप अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सही। मररतु बिल अहमदी हो जाएगा, सही है ना। ठीक। तो इसम से पहले अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए या वो इसम मुदाफ हो रहा हो खुद किसी और शय की तरफ, किसी और इसम की तरफ या जमीर की तरफ, तब भी क्या है, उसके ऊपर कसरा आ सकता है। तो यानी यहाँ पर ठीक। कायदा लगना चाहिए था, लेकिन वो कायदा अपनी इस्तिस्नाई सूरत की वजह से कायदा नहीं लगा। वरना ये जो वजन है मराफिक का, ये क्या है, मफाइल के वजन के ऊपर है, जो कि जमा मुंतहल जुमू का वजन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना ये अक्सर इबारतों में आती हैं, ठीक है ना। नॉर्मली 40% जो है वो समझ लें, जो अभी तक का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो है ये इस्तिस्नाई सूरतों के बगैर ये आते हैं, ये औजान। और 50-60% क्या होता है कि ये इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं लेकिन इस्तिस्नाई सूरतों में इस्तेमाल होते हैं, तो इसके ऊपर कसरा दाखिल नहीं होता, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहते हैं, औ बि मराफिकी औ बिकुल्ल कलीलिन व कसीरिन हुआ फीही औ मिनहू, ठीक है ना। उन्होंने पहले ये बात ये की कि अगर किसी ने एक मंजिल खरीद ली उसके तमाम हुकूक समेत, या उसने उसके तमाम मुनाफे समेत खरीद ली, मराफिक का मतलब उसके तमाम मुनाफे फायदे, या तीसरी सूरत क्या बयान कर रहे हैं, और बिकुल्ल कलीलिन और कसीरिन, उसकी हर जो है वो छोटी से छोटी शय के साथ या बड़ी शय के साथ, हुआ फीही जो उसके अंदर है। जैसे मिसाल है, आप घर लें और आपकी डील ये हो जाए कि भाई घर के अंदर जो कुछ है ये मेरा है। अब घर के अंदर मोटर लगी हुई है पानी की, ठीक है ना, उसमें जो है वो और कोई एसी लगे हुए हैं, कोई और उसमें सोफा सेट रखा हुआ है। अगर ये डील हो गई कि भाई जो कुछ घर में मौजूद है मेरा है, तो क्या है, वो चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये मुराद इनकी यही है कि भाई अगर उन्होंने उस मंजिल के हर से रिलेटेड जो कि उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं या उसके उससे रिलेटेड है, मुतल्लिक हैं, तो अंदर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे बाहर की चीज़ें भी उससे रिलेटेड हों। हर छोटी और हर बड़ी चीज़ अगर उससे रिलेटेड डील में शामिल कर ली तो उस सूरत में क्या होगा, जो मुश्तरी है, मुश्तरी यानी खरीदार, बाई कहते हैं बेचने वाले को, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मुश्तरी की हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सही। ये थोड़ा टेक्निकल इसमें बहस है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा आपके नॉलेज भी गेन हो जाएगा और तरकीब भी हो जाएगी साथ में, ठीक है ना। कोई चीज़ लेकिन समझ में नहीं आए तो इतना मसला नहीं है, तरकीब पे फोकस हमने करना है असल में, ठीक है ना। दोबारा फिर वो कहते हैं जी, वमन इश्तरा, और जिसने खरीदा, बैतन एक घर, पहले मंजिल की बात की, ठीक है ना। मंजिल बैत से एक दर्जा ऊपर होती है, बैत क्या है, सबसे लोअर दर्जा समझ लें, सिर्फ एक सिंपल कमरा। तो कह रहे हैं अब जिसने खरीदा एक घर, बैतन एक घर, कैसा घर, फौकाहू बैतुन जिसके ऊपर भी एक घर है, ठीक है ना, एक कमरा है यानी, और उसके ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है। कैसे खरीदा, बिकुल्ले हक्किन, उसके तमाम हुकूक समेत, हुआ लहू जो के जो है वो उससे मुंसलिक हैं या उस शख्स के लिए हैं, लम यकुन लहुल आला, तो ये कह रहे हैं कि नहीं होगा उसके लिए, आला वो ऊपर वाला जो घर है वो उसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ असल में मसला ये है कि
جو بیت ہے ٹھیک ہے نا, بیت جو ہے وہ سمجھ لیں دار کے جو ہے وہ ایک سب ڈویژن میں آتا ہے بیت, ٹھیک ہے نا. دار جو ہے یہ سپر سیٹ ہے, میں نے بتایا تھا. بیت منزل اس کا سب سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سیٹ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہوتی ہیں, یعنی دار جو ہے وہ مطبوع ہے, ٹھیک ہے نا. تابع مطبوع بھی آپ نے پڑھے ہوں گے نا نحو کے اندر. تو یہ معنوی طور پہ یہ اس چیز کو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ مطبوع ہے, اور دار بیت کیا ہے, اس کا تابع یعنی اس کے تحت آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دار کے اندر کئی کمرے ہو سکتے ہیں, تو ہر کمرے کو آپ بیت کا درجہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب گھر کے ایک بیت کے اوپر ایک اور بیت ہے, تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک بیت لینے سے, ایک کمرہ لینے سے اوپر والا کمرہ اس میں شامل نہیں ہو جائے گا, کیونکہ اوپر والے کا درجہ الگ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ایک سمجھ لیں یونٹ ہے یا چیز ہے, اور نیچے والا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے. اگر کسی نے نیچے گراؤنڈ فلور کا ایک کمرہ لیا تو وہ اوپر والا کمرہ اس کا نہیں ہوگا, اس ڈیل میں شامل نہیں ہوگا. لم یکن تو نہیں ہوگا, لہ الاعلی اس کے لیے اوپر والا. لم یکن آپ کو پتا ہے کیا ہے, فعل ناقص ہے, ٹھیک ہے نا. فعل ناقص کے بعد کیا آتا ہے, اس کا اسم اور اس کی خبر آتی ہے. تو لم یکن کے بعد اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے, یہ بتائیں ذرا اپنا امجد بھائی, آپ بتائیں. ارے الاعلیٰ جو ہے یہ اسم ہے. اچھا, اور خبر کیا ہے؟ کیا ہو گیا, پریشان ہو گئے کچھ؟ جی سمپل سی چیز ہے, دیکھیں ہم نے مبتدا خبر میں جار مجرور کے قواعد میں پڑھا ہے کہ جب جار مجرور شروع میں آتے ہیں کسی اسمیہ جملے میں بھی, اگر جار مجرور شروع میں ہو تو وہ خبر مقدم بنتی ہے, اور بعد والا جو اسم ہے وہ مبتدا مؤخر بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے اگر کسی سمجھ لیں حرف مشبہ بالفعل, یا جیسے یہ فعل ناقص ہے, ان کا بھی جو ہے وہ اسم اور خبر ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی جب آپ کے پاس جو ہے وہ جار مجرور شروع میں آئے گا اور اس کے بعد ایک اسم آئے گا, تو یہاں پر بھی جار مجرور کو آپ کسی کے متعلق کر کے ثابتاً وغیرہ کے متعلق کر کے آپ کیا کریں گے, خبر مقدم بنا دیں گے, اور اس کے بعد جو بھی اسم آ رہا ہوگا وہ مبتدا مؤخر بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی سمجھ لیں یہاں بھی جو ہے بالکل وہی اسمیہ جملے والی ایک ترکیب برقرار رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہاں بس ایک متعلق محذوف آپ کو نکالنا پڑے گا. اور اچھا, جار مجرور کبھی بھی یہ اس مبتدا نہیں بن سکتے, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر فعل ناقص کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, اور خبر کیا ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے. تو یہاں پر جب آپ متعلق نکالیں گے تو وہ ثابتن نہیں نکالیں گے بلکہ ثابتن نکالیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ثابتاً جو متعلق معذوف ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ حالت نسبی میں نکالیں گے, یعنی لم یکن ثابتاً لہ الاعلی, تو نہیں ثابت ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا نہیں جو ہے وہ جائز ہوگا اس شخص کے لیے اعلیٰ یعنی اوپر والا بیت, ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہتے ہیں جی ومن اشترا, اور جس نے خریدا دارن ایک دار کو. اب دار یہ سپر سیٹ ہے بیت اور منزل کا. جس نے ایک دار خریدا بے حدودی اس کی باؤنڈری سمیت, ٹھیک ہے نا. حدود حدود ہے آپ کو پتا ہے اردو میں بھی. فلہل, تو اس کے لیے کیا ہوگا, اب اس نے ایک دار خریدا اور اس کی کمپلیٹ باؤنڈری سمیت خریدا, تو کہہ رہے ہیں فلہل علو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہے, علو والکنیف. علوف سے مراد کیا ہے, اوپر والا, یعنی جس نے, جیسے ہم آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں نا گھر کسی نے خریدا, تو اس نے ایسا نہیں ہوتا گراؤنڈ فلور الگ خریدے, فرسٹ فلور الگ خریدے, سیکنڈ فلور الگ خریدے. اب وہ ایک انلیگل قسم کا کانسیپٹ تو آ گیا ہے جو الگ الگ فلیٹ بنا کے بیچتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. جو ایک گھر خریدتا ہے وہ پورا خریدتا ہے, ٹھیک ہے نا. گراؤنڈ پلس 1 ہو یا گراؤنڈ پلس 2 ہو, وہ پورا گھر خریدتا ہے. تو یہ وہ والی سچویشن ہے جس میں کہہ رہے ہیں ومن اشتری دارن بے حدود, اس نے ایک دار خریدا اپنی کمپلیٹ باؤنڈری سمیت, تو کیا ہوگا, فلہ العلوف. یہاں پر بھی کیا ہے, لہو خبر مقدم ہے, اور علوف جو ہے وہ معطوف علیہ والکنیف, ٹھیک ہے نا. معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گا, مبتدا مؤخر, ٹھیک ہے. تو العلوف جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, تو اس کے لیے ثابت ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, یہ جائز ہو جائے گی اوپر والی منزل. والکنیف اور کیا ہے, واش روم, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے واش روم وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. نارملی یہ
जो है वो बैत में शामिल नहीं होती, ठीक है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, जमा बैनल मंजिली, ठीक है ना, जमा कर दिया उन्होंने, किसने, इमाम मोहम्मद की बात हो रही है कि उन्होंने जमा कर दिया। बैना, बैना एक खास लफ्ज है इस्माइल भाई, एक खास लफ्ज क्यों है, बैना कैसे इस्तेमाल होता है? कुछ याद आ रहा है? नहीं, मतलब सवाल आपका किस सिलसिले में, मतलब ये देखें, बैना। बैना, अमजद भाई आपको ये कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? सर सर बैना जो है वो दो लफ्जों के या चीजों के दरमियान फर्क करने के लिए वो इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं, वो फर्क, वो कहानी हाँ, तो अलग है, लेकिन अरबी इबारत में इसका एक खास यूज है। वो खास यूज ये है कि ये बैना भी लाजिमुल इजाफत होता है, ठीक है ना। बैना भी लाजिमुल इजाफत होता है, इसके बाद वाली चीज हमेशा जो है वो उस पे जर आता है, ठीक है ना। सर, तो ये कह रहे हैं जी, जमा, उन्होंने जमा कर दिया, किसने, इमाम मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहे हैं। किस चीज में, बैनल मंजिली वल बैती व दारी। तो बैना के बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो मैं, अब बैनल मंजिली ऐसा नहीं है कि उसके बाद वाली चीज पे जर नहीं आएगा, बैनल मंजिली वल बैती, तो वाव क्या है, हरफे अतफ। तो हरफे अतफ से पहले जो चीज होती है, हरफे अतफ के बाद वाली चीज के ऊपर भी वही एराब आते हैं, ठीक है ना। अतफ का सही मतलब ये होता है कि अगर मंजिल के ऊपर बैना दाखिल हो रहा है ना, मंजिल को जर दे रहा है सही बैना, तो मंजिल के सही बाद हरफे अतफ के बाद बैत आ रहा है, तो इस बैत के ऊपर भी जर आएगा उसी बैना की वजह से, ठीक है। उसके बाद ठीक है। दार आ रहा है तो दार पे भी जर आएगा उसी बैना की वजह से। तो हम कहते हैं भाई सही कि बैत का अतफ किस पे है, मंजिल पे है, सही है ना। और दार का अतफ जो है वो किस पे है, वो भी मंजिल पे है, क्योंकि मंजिल मदखूल है किसका, उस लफ्ज का जिसकी वजह से उस पे हरफे जार आ रहा है, ठीक है ना। बैना दाखिल हो रहा है जिस चीज पे वो, ठीक है ना, उसका मदखूल ये बन जाएगा बैना का। तो बैनल मंजिली वल बैती व दारी, ठीक है ना, उन्होंने इन तीनों को जमा कर दिया। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि इमाम मोहम्मद ने मंजिल, बैत और दार इन सबको एक ही कैटेगरी में शामिल कर लिया, वो इसमें फर्क नहीं करते। दौर के साथ हर दौर में ज़ाहिर चीज़ें बदलती हैं, तो इमाम आज़म के दौर में चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो बाद में थोड़ी सी तब्दीली आई, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गए, उन्होंने ये चीज़ें शामिल कर दी सारी इसमें। तो उसके बाद ये कह रहे हैं जी, इसमुद्दारी, ठीक है ना, इस इसम असल में है, लेकिन इसको जब मिला के पढ़ेंगे आप तो फस्मुद्दारी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो हमजा है उसको गिरा देंगे आप। पर इसम क्या है, मुदाफ दारी, मुदाफिले, नकरा के बाद मारिफा, ठीक है ना। और काकी के का तर्जमा बीच में आ रहा है। दार का जो इसम है, ये बता रहे हैं कि दार का जो इसम है, नाम है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, यन तजिमु, ये शामिल होता है किसको, यन तजिमुल उलुवा, ठीक है ना, ये बुलंदी को भी शामिल होता है, या ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसको भी शामिल होता है। मंजिल में तो हम कह रहे थे कि भाई एक मंजिल लेने से ऊपर वाली मंजिल नहीं होगी जब तक वो वजाहत नहीं करता कि मैं ऊपर वाली मंजिल को भी लेता हूँ, ठीक है ना, नीचे वाली के साथ सारे हुकूक के साथ, सही है ना। इसी तरह बैत का भी उन्होंने बोला कि एक बैत लेने से दूसरा बैत उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि अगर उसने एक दार खरीदा तो दार के ऊपर जितनी भी चीजें आएंगी वो दार के अंदर शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। फस्मुद्दारी, ठीक है ना, तो दार का इसम जो है वो क्या करता है, यंतजिमुल उलूवा, वो शामिल कर लेता है, ठीक है ना, किसको, उलूवा, वो ऊपर वाली जो जो भी कंस्ट्रक्शन है, मंजिलें हैं, बिल्डिंग हैं, उन सबको शामिल करता है, शामिल होता है। तो यहाँ पे ये तरकीब क्या होगी, इसम मुदाफ दारी मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले मिलकर क्या बन जाएगा, मुब्तदा। और आगे यंतजिमु क्या है, फेल, इंतजमा यंतजिमु, ठीक है ना। ये कौन सा, ये किस बाब से है ये, कुछ बताएंगे, इंतजमा यंतजिमु। इंतजामा, यंतजिम, इंतजामा, अब फाल का सीगा ये, नहीं सॉरी, वो है इनफियाल है ये। हाँ, इनफियाल से है ये, ठीक है ना, क्योंकि नून शुरू में आ रहा है ना, हम्म। ठीक है ना। लेकिन ये आप इसको इफ्तियाल से भी ले सकते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि ता दूसरे मकाम पे आ रही है ना, इफ्ताला, तो इसका अगर मादा देखेंगे तो मादा नज्म होना चाहिए। इफ्ताला, ता को हटा दें, ठीक है ना, तो फा आइन और लाम क्या बनेगा, नून वाद और सही सही। दुआ और मीम, ठीक है ना, तो ये नज्म से बनेगा, इफ्तियाल से, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि यंतज़िमुल उलूवा, तो ये क्या करता है, शामिल कर लेता है बुलंदी को भी। लिअन्नहु, किस लिए, वजह बयान कर रहे हैं, लिअन्नहु इस्मुन, अब अन्ना आ रहा है, अन्ना के बाद हु ज़मीर जो है उसका इस्म आ रहा है, लिअन्नहु इस्मुन, ठीक है ना, इसलिए कि ये एक नाम है, लिमा उदीरा अलैहिल हुदूदु, ठीक है ना, जिसके ऊपर मदार होता है हुदूद का, सही है ना, यानी दार का वो कह रहे हैं कि जो लफ्ज है वो उस पे हुदूद का जो है वो मदार होता है, कि जितनी भी बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो सारी दार में शामिल हो जाएंगी। लिमा उदीरा, तो ये क्या है, फेले मजहूल लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जिसके ऊपर मदार होता है अलैहि, उसके ऊपर, किसका, अल हुदूदु, हुदूद का, ठीक है ना, तो हुदूद क्या है, ये फेले मजहूल का नाइबुल फाइल बन रहा है, ठीक है ना, मारू इसको हम मरफू पढ़ रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी वल उलूफु, और उलूफ जो है वो क्या है, मिन तवाबिल असली, और उलूफ जो है वो असल के तवाबे में से है। जो बुलंदी ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई भी है वो असल में क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनता है उसकी बुनियाद क्या होती है, ग्राउंड फ्लोर ही होता है। तो कह रहे हैं जो उलूफु ऊपर का जो फ्लोर है, वल उलूफु मिन तवाबिल असली व अज्जाइही फयदखुलु फीहु, तो वो कह रहे हैं जो ऊपर वाली जो मंजिल है वो नीचे वाली जो बुनियाद है या जड़ है उसके तवाबे में से है, उसके ताबे है या उसके अज्जा में से है, ठीक है ना, तो होगा क्या, फयत खुलू फीही, तो वो ऊपर वाली मंजिल दाखिल हो जाएगी जो नीचे वाली जो मंजिल है, जिसको हम दार कह रहे हैं और हुदूद जिसकी बयान कर रहे हैं, उसके ताबे होकर वो ऊपर वाली सारी चीजें दार में शामिल हो जाएंगी। लेकिन बैत और मंजिल के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, दार एक